Assalamu alaikum, dear students. This lecture belongs to the course title Chemistry of Atmospheric Pollutants, and the course code is Major Chem 452. As per the syllabus, the topic is acid rain and its impact. So, the learning objective for this session will be like at the end of the session, you will be able to um, know the definition of acid rain, and you should be aware that how to measure the level of acid in the precipitation, and what are the causes of acid rain, what are the chemical reactions or equations involved in acid rain, and how the formation of acid rain occurs, what are the affected areas due to acid rain, and what are effects of acid rains on trees, aquatic life, buildings, vegetation, and human health. And in the last, you will analyze the problem, that where the problem exists, and in the end, you will be able to give solution, that how you can solve the problem of acid rain. So let's start the topic with the definition of acid rain. So as the name indicates, it's something which belongs to acid, and rain means like rain can be considered as a normal rain or water vapors which are present in the atmosphere. So let's see what's the definition says. Now, acid rain is the precipitation that has a pH of less than that of natural rainwater, which is about 5.6 due to dissolved carbon dioxide. Now, जो natural rainwater होती है, rainfall होती है हमारे पास, उसका जो pH होता है, that is not exactly a neutral water. उसके अंदर भी कुछ amount of carbon dioxide क्योंकि dissolve होता है, तो वो भी थोड़ा सा less हो जाता है. अपना pH लेवल 7 नहीं शो करता, विच इज न्यूट्रल 7, तो न्यूट्रल होता है तो वो 5.6 के अराउंड होता है. नाउ इट इज फॉर्म्ड when sulfur dioxide and nitrogen oxides as gases or fine particles in the atmosphere combine with water vapors and precipitation as sulfuric acid or nitric acid in rain, snow or fog. देखिए, जो एसिड रेन नॉर्मल होती है विदाउट आप कहिए कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की इन्वॉल्वमेंट के बगैर भी जो रेन होती है, वो बिल्कुल न्यूट्रल वाटर नहीं होता, उसमें भी कुछ कंटेंट ऑफ होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के. लेकिन when this pH becomes less than 5.6, so then it becomes very harmful, वो acidic in nature हो जाती है. Now if you want to see the exact definition of acid rain, so here are three definitions which are given in different dictionaries. अगर आप देखते हैं तो dictionary.com से this is the definition for acid rain. Britannica.com ने आपको ये definition दी हुई है, so you can pick any one definition, all three are correct for acid rain. आप कोई सी भी definition इसमें से learn कर सकते हैं, मगर जो बहुत ज़्यादा मुझे मतलब appropriate लगती है, तो वो ये लगती है जो कि britannica.com में है. Now what is acid rain? It's basically any precipitation, including snow, that contains a heavy concentration of sulfuric and nitric acid. This form of pollution is a serious environmental problem in the large urban and industrial areas of North America, Europe, and Asia. Automobiles, certain industrial operations, and electric power plants that burns fossil fuel emit gases, sulfur dioxide and nitrogen oxide into the atmosphere, where they combine with water vapor in clouds to form सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड. सो बेसिकली अगर आप ये देखें, इन नटशेल इन्होंने क्या बताया है कि जितने भी आपकी अर्बनाइजेशन हो रही है, अर्बनाइजेशन जहाँ भी होती है वहाँ पे आपको पता है ह्यूमन एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं, या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जहाँ पे बहुत ज्यादा हों, जहाँ पे व्हीकल्स बहुत ज्यादा हों, और जहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती हैं, उसकी उसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड एंड नॉक्स, यानी सॉक्स एंड नॉक्स, ये दो जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये एनवायरनमेंट में जब भी एंटर होते हैं तो ये रिएक्ट करते हैं विद वाटर वेपर्स विच आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या बना लेते हैं,
सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. नाउ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड जब एटमॉस्फेयर में सस्पेंड रहते हैं, एंड जब भी कभी रेनफॉल होती है या फिर आपको पता है ओस जब पड़ती है हमारे प्लांट्स में रात के टाइम पे, जब वाटर कंडेंस होकर नीचे आ रहा होता है और इस फॉर्म में, तो क्या होता है कि ये जितने भी डेंजरस काइंड ऑफ एसिड्स हैं, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, आपको पता है इट इज द मोस्ट डेंजरस एसिड, और नाइट्रिक एसिड भी बहुत ज्यादा डेंजरस है आपकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो जब भी ये हमारे अर्थ के लैंड पे आके आते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल, और जब भी कंडेंस होके नीचे आए लैंड पे, तो फिर ये क्या हो जाते हैं, they become very dangerous because they are basically acids. और जब भी ये फॉल होंगे हमारी अर्थ पे, लैंड पे, तो ये दे आर वेरी हार्मफुल. सो बेसिकली यही है एसिड रेन. एसिड रेन किस तरह से बन रही है, सॉक्स एंड नॉक्स जो है वो वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करते हैं, एंड देन विद द हेल्प ऑफ द रेनफॉल इट कम्स ऑन द लैंड, और लैंड को आके फिर ये डिस्ट्रॉय करते हैं. तो इस चीज को बेसिकली हम कहते हैं कि ये है एसिड रेन. नाउ यू कैन गो थ्रू द अदर डेफिनेशंस आल्सो, अगर आप चाहें तो. जो यूएस फेडरल गवर्नमेंट है उसने जो डेफिनेशन एसिड रेन की बताई है वो ये है कि एसिड रेन इज अ ब्रॉड टर्म रेफरिंग टू अ मिक्सचर ऑफ वेट and dry deposited material from the atmosphere containing higher than normal amounts of nitric and sulfuric acid. The precursors or chemical forerunners of acid rain formation results from both natural sources such as volcanoes and decaying vegetation, and man-made sources, primarily emissions of sulfur dioxide and nitrogen oxides resulting from fossil fuel combustion. अच्छा देखिए, इसमें एक जो नई चीज आपको पता चल रही, पॉइंट पता चला है एसिड रेन के बारे में, कि ये मिक्सचर हो सकता है बोथ वेट एंड ड्राई डिपोजिशन. ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेन वही है जो कि लाइक एसिड रेन वही नहीं है जो कि वेट फॉर्म में है. इट कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट इन अ ड्राई फॉर्म. ड्राई फॉर्म में भी ये मौजूद हो सकती है. और इसके प्रिकर्सर्स कहाँ से हमें मिल रहे हैं, एक तो नेचुरल सोर्सेज हैं जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शंस हैं या डिकेइंग ऑफ वेजिटेशन है, उसमें से भी आपको पता है नॉक्स कंपाउंड जो हैं वो एटमॉस्फेयर में आ रहे होते हैं, और वॉल्केनिक इरप्शन से तो मेजर अमाउंट ऑफ नॉक्स एंड सॉक्स जो हैं वो एनवायरनमेंट में जाते हैं. और ये तो नेचुरल है. इसके अलावा मैन मेड सोर्सेज हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि व्हीकल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो एनवायरनमेंट में इमिट करती हैं. तो दिस इज बेसिकली द रीजंस फॉर द acid rain formation. Now, how do we measure the level of acid in the precipitation? Like अब जो acid rainfall हो रही है हमारे environment में, तो हम किस तरह से उसको calculate कर सकते हैं? The basic जो आपको basic बिल्कुल criteria है इसको check करने का, वो है pH scale. आपको पता है कि pH में अगर 7 पे कोई भी वैल्यू होती है या 7 6 तक, 7 6 8, ये कंसिडर होते हैं कि ये न्यूट्रल हैं. ये बहुत ज्यादा एसिडिक भी नहीं है, बहुत ज्यादा बेसिक भी नहीं है. But anything which is below than 5 or below than 4 is considered as like highly acidic in nature. और देखिए आप pH में 1 और 2 पे तो ये बैटरी एसिड जो है which is very very much dangerous. वेरी बैटरी एसिड तो ऐसा एसिड होता है जो हर चीज को आपके यानी बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है, गला देता है. तो एसिड रेन जो है वो कहाँ फॉल कर रही है, आप ये देखिए कि ये 3 से लेके 5 के अराउंड में ये एसिड रेन जो है ये अराउंड करती है. 5.6 से अगर डाउन जाती है वैल्यू तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एसिडिक रेन, क्योंकि नॉर्मल रेन हमने देखी है 5.6 होती है. एंड दिस इज बिकॉज के क्योंकि एनवायरनमेंट में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, तो व्हेन वाटर रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड it will make carbonic acid which is acidic in nature, but it is not that harmful as sulfuric acid and nitric acid which comes under दिस कैटेगरी. लाइक यहाँ पे ये वाले पीएच में जो है यहाँ पे ये फॉल कर रही है, एंड देयरफॉर इट इज like very acidic in nature, and therefore it is harmful for the environment. Okay, now causes of acid rains. What are the causes now? Let's see. There are some natural sources as we discussed के naturally कौन सी sources हैं. एक तो सबसे पहली तो volcanoes है, इनको तो they are uncontrollable, हम तो ये control कर ही नहीं सकते हैं. And from biological processes that occur on the land, in wetlands and in the oceans contribute acid producing gases to the atmosphere.
Now, effects of acidic deposits have been detected in glacial ice thousands of years old in remote parts of the globe. Now, देखिए सिर्फ रेन की वजह से नहीं, स्नोफॉल भी जो हो रही है उसके अंदर भी इसके ट्रेसेस जो हैं वो डिटेक्ट किए गए हैं। और सिर्फ ये नहीं है कि ये अगर एसिड रेन एक एरिया में हो रही है, एक पार्ट ऑफ द अर्थ पे हो रही है, तो इट विल नॉट अफेक्ट द अदर पार्ट ऑफ द अर्थ। लाइक फॉर एग्जांपल अगर साउथ में कोई एक्टिविटी हो रही है एसिड रेन की वजह से, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ साउथ में ही कन्फाइंड रहेगी, इट कैन ऑल्सो गो टू द नॉर्दर्न एरियाज ऑल्सो। तो इट्स अ ग्लोबल सिचुएशन। ग्लोबली ये एसिड रेन को कंट्रोल करने के लिए इसीलिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स की जा रही हैं। अच्छा, नेचुरल सोर्सेज हमने डिस्कस कर ली। नाउ व्हाट आर द ह्यूमन सोर्सेज? द प्रिंसिपल कॉज ऑफ एसिड रेन इज फ्रॉम ह्यूमन सोर्सेज आर द इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज। आपको मैंने जैसे बताया कि जो इंडस्ट्रीज हैं दे आर जनरेटिंग सो मेनी सॉक्स and NOx, and apart from industrial factories, power generation plants and vehicles, sulfur dioxide and oxides of nitrogen are released during the fuel burning processes, that is combustion. अब ये fossil fuel burning से भी ये मिल रहा है हमें, और जो आपका इनकम्प्लीट बर्निंग होती है कोल की, उसकी वजह से भी हमें सॉक्स और नॉक्स के कंपाउंड्स मिलते हैं, और विच विल contribute in the formation of acid rain. So these are the causes of acid rain. One is natural source, other is human sources or anthropogenic activities. Now, what are the chemical equations which are involved for the formation of acid rain? Now, let's discuss that. Now, both sulfuric acid and nitric acid are soluble in water. We know that these two acids are highly soluble in water and are the major acids present in the acid rain. As this forms and fall onto the earth's surface, these strong acids are also brought to the surface, causing harmful effects on the built and natural environment. अच्छा, जैसे ही ये एसिड्स जो हैं ये अर्थ पे फॉल करते हैं या लैंड पे आते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स जो हैं वो बिल्ड कर देते हैं एनवायरनमेंट में। और इनका बेसिक जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या है वो देखते हैं। जैसे सॉक्स के बारे में मैंने बताया आपको कि सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर, even monoxide भी, when sulfur dioxide reacts with water to form sulfurous acid, like first step क्या है रिएक्शन का कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगी और बनाएगी sulfurous acid. Now substances in the upper atmosphere then catalyzes the reaction between sulfurous acid and oxygen to form सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे फिर सल्फ्यूरस एसिड जो है वो आपका रिएक्ट करेगा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपको सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा, एंड देन विद द हेल्प ऑफ द रेनफॉल ये हमारे लैंड को आके डिस्ट्रॉय करेगा। सिमिलरली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये हमने बहुत दफा पढ़ चुके हैं कि इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स में भी हमने पढ़ा, स्मॉग फॉर्मेशन में भी हमने पढ़ा कि किस तरह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है उसके कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे ये एज अ प्राइमरी पोल्यूटेंट जो है हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है। नाउ दिस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विल रिएक्ट विद वाटर एंड इट विल फॉर्म nitrous oxide and nitric oxide. Both acids are forming here, you can see, and दोनों ही acids जो हैं they are highly toxic to the land. अच्छा जी, ये यहाँ पे ये nitrous oxide जो है it will further react with oxygen and it will be converted into nitric acid. So more nitric acid is generated here. Now formation of acid rain. यहाँ पे इन्होंने ये कुछ अर्बन एरियाज दिखाए हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं एंड अदर थिंग्स। वहाँ से आपको पता है कि एनवायरनमेंट में सॉक्स एंड नॉक्स के जो कंपाउंड्स हैं दे आर कमिंग। इसके अलावा कोल फायर्ड इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज एंड अदर सोर्सेज हैं जो कि फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करती हैं और फिर सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो है हमारे एनवायरनमेंट में आ रही हैं। और फिर किस तरह फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे इन्होंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है। इफ यू जस्ट गो थ्रू दैट, when water vapor condenses or as the rain fall, they dissolve in the water to form sulfuric acid and nitric acid. While the air is cleaned of the pollutant in this way, it also causes precipitation to become acidic, forming acid rain. now देखिए अब यहाँ पे जैसे ही ये सॉक्स एंड नॉक्स वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करेंगे एंड देन विद द हेल्प ऑफ द रेन वाटर इट विल बी कमिंग बैक टू द लैंड और फिर लैंड पे आके
दे आर डिस्ट्रॉइंग द जो लैंड के ऊपर जितने भी प्लांट्स वेजिटेशन है आपकी, इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। इसके अलावा जो अदर मॉन्यूमेंट्स हैं, आपके जितने भी बिल्डिंग्स हैं, उनको ये डिस्ट्रॉय करते हैं। मार्बल के ऊपर अगर एसिड रेन हो जाती है, उसको ये डिस्ट्रॉय करते हैं। तो दीज आर द like this is how the formation of acid rain occurs. Now what are the affected areas? अब एसिड रेन हो गई, अब इसकी वजह से कौन कौन से एरियाज हैं which are highly affected with this. Now in Canada, acid rain is a major problem. Water and soil system lack natural alkalinity such as lime base cannot neutralize acid. अब जब लैंड पे ये एसिड रेन होती है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपकी जो सॉइल है, जहाँ पे आपकी लैंड की जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होनी है, लैंड के ऊपर प्लांटेशन होनी है, वेजिटेशन होनी है, अगर वो लैंड आपका एसिडिक इन नेचर हो जाएगा, तो वो फिर प्लांट्स को ग्रो नहीं करता। और फिर उस लैंड को वापस एल्कलाइन या न्यूट्रल करने के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो वो फिर बैरन लैंड हो जाता है, बंजर हो जाती है वो जमीन, उस पर वेजिटेशन ग्रो ही नहीं हो पाती। एंड कैनेडा इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम. Now, industrial acid rain is a substantial problem in China, Eastern Europe, and Russia, and areas downwind from them. Like इंडस्ट्रियल एसिड रेन जो है, क्योंकि आपको पता है कि चाइना में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल एरियाज जो इस वक्त ऑपरेटिव हैं, वो चाइना के अंदर हैं, या ईस्टर्न यूरोप और रशिया के अंदर भी बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज जो हैं, दे आर ऑपरेटिव देयर. एंड बिकॉज ऑफ दैट सॉक्स एंड नॉक्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर सस्पेंडेड इन द एयर. और फिर वहां से इंडस्ट्रियल सॉक्स एंड नॉक्स जो हैं, वो एसिड रेन के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. इसी तरह एसिड रेन फ्रॉम पावर plants in the Midwest US, United States, has also harmed the forests of upstate New York and Newland. Now, this shows that the effect of acid rain can spread over a large area far from the source of the pollution. Now, even अगर देखिए आपके पास नॉक्स एंड सॉक्स पाकिस्तान में आपके पास कलेक्ट हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. नाउ these can be transmitted through wind to the neighboring countries also. और फिर नेबरिंग कंट्रीज में जाके भी एसिड रेन हो सकती है. इट्स नॉट कि ये सिर्फ कन्फाइंड रहेंगे पाकिस्तान में. तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो एसिड रेन का जो प्रॉब्लम है, इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम. क्योंकि जो ये कंपाउंड, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो विच आर इन द एटमॉस्फेयर लाइक सॉक्स एंड नॉक्स, दे कैन ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस विद द विंड, एंड कहीं भी जाके एक्यूमुलेट होके फिर वहां रेनफॉल करके एसिड रेन, दे कैन कॉज एसिड रेन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. सो दैट्स व्हाई इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम. Now, effects of acid rain. Now, what are the effects? Effect क्या कर रहा है वो? Acid rain अगर हो रही है, तो उसके क्या effects हो रहे हैं हमारे environment में? Now, let's see that. Now, acid rain is an extremely destructive form of pollution, and the environment suffers from its effect. Forests, trees, lakes, animals, and plants suffer from acid rain. Like all the living organisms are affected because of the एसिड रेन. और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है, यानी तबाही क्रिएट कर देती है ये, जब भी एसिड रेन हमारे एनवायरनमेंट में आती है या होती है, जब भी एसिड रेन. और अब नॉर्मली आप ये देखिए कि जितनी भी रेनफॉल होती है हमारे यहाँ, जब भी आपके ये मॉनसून मॉनसून सीजन के अंदर जो रेनफॉल्स हो रही हैं, वो बेसिकली एसिड रेन्स ही हैं. पहले अगर आप देखें 20 years बैक, तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, इतने ज्यादा नॉक्स एंड सॉक्स कंपाउंड्स नहीं होते थे एटमॉस्फेयर में, और पीपल यूज टू एंजॉय द रेनफॉल्स एंड रेन वाटर में दे यूज टू एंजॉय. बट नाउ जो पहली रेनफॉल होती है, उसको कहते हैं कि इट इज फुल ऑफ एसिड रेन, यानी कि जो फर्स्ट टाइम मॉनसून की बारिश होती है, उसमें इसीलिए मना करते हैं कि आप उसको उसमें ना नहाएं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो हैं, वो हमारे लैंड पे आ रहे होते हैं. तो और इसी तरह जो लाइक फॉर एग्जांपल अनयूजुअल रेनफॉल्स होती हैं, लाइक फॉर आफ्टर 2 months एक रेनफॉल हुई, तो उसमें भी नहीं नहाना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा कंटेंट होते हैं आपके सल्फ्यूरिक एसिड के और नाइट्रिक एसिड के. क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट हुई भी होती है एनवायरनमेंट में, और जब वो आफ्टर 1 month रेनफॉल होती है, तो वो तमाम की तमाम नाइट्रिक एसिड
और सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्म में लैंड पे आती है। और एनी हाउ अगर रेनफॉल ना भी हो रही हो तो जो ओस पड़ती है हमारे प्लांट्स पे रात के टाइम में, दैट ऑल्सो कंटेन्स सम क्वांटिटी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड sorry, sulfur dioxide नहीं, sulfuric acid and nitric acid. Now trees, the needles and leaves of the tree turns brown and fall off. Trees can also suffer from stunted growth and have damaged bark and leaves, which make them vulnerable to weather diseases and insects. और जब ट्रीज के ऊपर ये एसिड रेनफॉल होती है तो उनके बार्क, उनकी जो लकड़ी की जो छाल होती है वो खराब हो जाती है, लीव्स खराब हो जाते हैं उनके, और इसी वजह से क्या होते हैं, दे आर मोर प्रॉन टू डिजीजेस। उनके ऊपर इंसेक्ट्स जो हैं वो अटैक कर देते हैं। लाइक अगर कोई रबर प्लांट है और उसकी बार्क जो है वो खराब हो जाती है एसिड रेन से, तो उसका जितना भी रबर है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा बार्क में से, और फिर उसके ऊपर क्या होगा, इंसेक्ट्स जो हैं उस प्लांट के ऊपर अटैक कर देंगे, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वो पूरे का पूरा प्लांट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो दीज आर सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। अच्छा, इसके अलावा क्या हो रहा है, द सोइल पॉइजन्स the tree with toxic substances that the rain has deposited on it. Now जो soil है, soil के अंदर भी जाहिर है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड आ रहा है। एंड आपको पता है कि जो रूट से ट्रीज जो हैं या प्लांट्स जो हैं वो रूट से मिनरल्स और वाइटामिन उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो क्या करने लगते हैं, वो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड भी उनकी बॉडी के अंदर जाने लगता है प्लांट्स के, और जब वो अंदर जाता है, पेनिट्रेट करता है, तो वो बिल्कुल प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और like internally भी they are getting weaker these plants, and externally जब ये leaves पे गिरता है तो leaves के को भी destroy कर देता है। तो इसीलिए both way it is very toxic. Now effects on aquatic life. Now aquatic life के लिए भी acid rain बहुत harmful है. Now lakes are also damaged by acid rain. Fish die off and that removes the main source of food for bird. Acid rains can even kill fish before they are born when the eggs are laid and come into contact with the acids. Now देखिए आप कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन है, आपकी पूरी जो फूड चेन या फूड साइकिल है जिसके अंदर ये सारे एनिमल्स इन्वॉल्व हैं, इसको पूरा जो है वो बहुत बैडली इम्पैक्ट हो रहा है एसिड रेन की वजह से। क्योंकि आप देखिए लेक्स के अंदर एसिड्स का लेवल हाई हो जाता है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एक्वेटिक एनिमल्स जितने भी हैं उनकी जो लाइफ साइकिल है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। और फिर इसके अलावा क्या हो रहा है कि जो फिश वाटर को ज़ाहिर वाटर अपनी बॉडी के अंदर लेके जाती हैं, और फिर एज अ रिजल्ट ऑफ दैट सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड उनकी बॉडी में जा रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनकी जो ग्रोथ है फिशेस की वो भी बहुत ज्यादा स्टंटेड हो रही है, यानी कि कम हो जाती है उनकी ग्रोथ, और वो दे आर अनएबल टू रिप्रोड्यूस देमसेल्फ नाउ। अच्छा, इसकी वजह से क्या होता है, जो फिशेज हैं दे आर टॉक्सिक नाउ विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, और जो बर्ड्स इन फिशेस को खाती हैं दे विल आल्सो गेट टॉक्सिकेटेड विद दिस सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। सो इट्स अ फूड चेन, लाइक आप जैसे अपने फूड चेन में देखते हैं कि एक एनिमल दूसरे को खा रहा है, दूसरा तीसरे को खा रहा है, तो अगर एक एनिमल के अंदर कोई भी टॉक्सिसिटी हो जाती है तो दैट विल गो इनटू द एंटायर साइकिल। या तो दिस इज हाउ द एसिड रेन इज so destructive and dangerous. नाउ इफेक्ट्स ऑन द बिल्डिंग्स। नाउ अब देखिए ये जब एसिड रेन होती है आपकी बिल्डिंग्स को ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय करती है। अब जितने पुराने स्कल्पचर्स थे यूरोप में जो कि मशहूर है, यूरोप आपको पता है कि बहुत ज्यादा मशहूर था अपने पुराने कदीम स्कल्पचर्स की वजह से। तो अब क्योंकि एसिड रेन उनके ऊपर होती है तो वो क्योंकि बने हुए हैं मार्बल के, लाइमस्टोन के, तो वो सबको डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, नॉट ओनली इन यूरोप। अगर आप पाकिस्तान को भी देखें तो अगर आपने कभी कायदे आजम का मौसोलियम देखा हो जो कि कराची में है, तो अगर आप उसकी 20 years बैक की पिक्चर देखें और उसको अब से कंपेयर करें तो दिस ड्रास्टिक चेंज इन इट्स टेक्सचर। उसका जो मार्बल है उसकी शाइन, उसका वो तमाम जो है बहुत बुरी तरह से डैमेज हो रहा है। इसी तरह से जो हमारी यहाँ पे लाहौर में कुछ जो बिल्डिंग्स हैं, जो पुरानी बिल्डिंग्स हुआ करती थी, हमारी मॉन्यूमेंट्स थे, वो बहुत ज्यादा बेडली उनके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है एसिड रेन्स का। इसके अलावा ताजमहल जो आगरा में मौजूद है उसके ऊपर बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही हैं एसिड रेन्स, और उसका जो मार्बल है वो बिल्कुल डिट्यूरिएट हो रहा है डे बाय डे। So these are some of the effects of acid rains on buildings.
Now, as we have discussed that it is harmful to vegetation now, and why? Because increase acidity in the soil, soil के अंदर acidity levels जो हैं वो बहुत increase हो रहे हैं. इसकी वजह से it leaches the nutrients from the soil, slowing plant growth. जो न्यूट्रिएंट्स हमारे सॉइल के अंदर मौजूद हैं वो एसिड रेन की वजह से क्या हो रहे हैं, वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, और फिर प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा स्लो होती जा रही है. इसके अलावा जो है टॉक्सिन्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं हमारे प्लांट्स के अंदर और सॉइल्स के अंदर. एंड क्रिएट्स ब्राउन स्पॉट्स इन लीव्स ऑफ ट्रीज इम्पीडिंग फोटोसिंथेसिस. अच्छा, ये तो बहुत कॉमन साइट है. अगर आपके घर के अंदर ही कोई लॉन एरिया है तो आप उसमें अगर जाके लीव्स को चेक करें तो लीव्स आर बेडली डैमेज नाउ दीज डेज. अगर आप उनको चेक करें आप बहुत विजिबल नजर आता है कि एक तो ब्राउन कलर के हो जाते हैं लीव्स बहुत जल्दी, और इसके अलावा बहुत ज्यादा ना बिल्कुल ऐसे हुए हुए होते हैं जैसे अगर किसी कपड़े के ऊपर एसिड कभी गिर जाए तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कपड़े का क्या हाल होता है. तो इसी तरह मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि प्लांट्स जो हैं उनके लीव्स बिल्कुल ऐसे डिटेरिएट हुए हुए होते हैं, बिल्कुल टूटे हुए हो रहे होते हैं. और इट्स नॉट बिकॉज के पानी की कमी है, पानी नहीं आप दे रहे या फर्टिलाइजर नहीं दे रहे हैं, इट्स बिकॉज ऑफ द एसिड रेन. एसिड्स बेसिकली उनके क्यूटिकल्स को डिस्ट्रॉय करते हुए लीव्स को डैमेज कर रहे हैं. And it also allows the insects to attack the plants. Like जैसे मैंने आपको बताया कि अगर प्लांट्स के ऊपर जो है वो ओपन एंडेड उनके लीव्स हैं या रूट्स हैं या स्टेम है, तो उसके ऊपर क्या होगा, इंसेक्ट्स विल रेडिली अटैक देम, और वो ऑब्वियसली अल्टीमेटली आपके प्लांट्स को डैमेज करेंगे. नाउ इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ. ना सिर्फ ये कि बिल्डिंग्स हमारी खराब हो रही हैं, ना सिर्फ ये कि हमारी वेजिटेशन खराब हो रही है, इसके अलावा हमारी अपनी हेल्थ, ह्यूमंस की जो हेल्थ है, इट इज आल्सो बैडली अफेक्टेड बाय एसिड रेन. नाउ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, एजमा, ड्राई कफ्स, हेडेक्स एंड थ्रोट इरिटेशंस, ये तो बहुत कॉमन साइट्स हो गई हैं कि हर दूसरे बंदा इज सफरिंग फ्रॉम एजमा और थ्रोट इरिटेशन. सुबह में जब भी सो के उठें तो आपको ऐसे ही लगता है कि आपका गला जो है वो बिल्कुल काफी ज्यादा हर्ट कर रहा होता है आपको. तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द एसिड रेन. आपके एनवायरनमेंट में इतना ज्यादा एसिडिक हो चुका है कि जब आप इनहेल कर रहे हैं एयर को तो यू आर टेकिंग इन लाइक उसके वाटर वेपर्स के साथ आपके थ्रोट के अंदर, आपकी नेजल कैविटी के अंदर तमाम जो ये एसिड्स हैं दे आर एंटरिंग. नाउ इट ऑल्सो डैमेजेस योर ब्रेन. किडनी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं. अल्जाइमर्स डिजीज जिसमें आप मेमोरी लॉस हो जाती है इंसान की, हैज़ बिन लिंक्ड टू पीपल ईटिंग टॉक्सिक प्लांट्स एंड एनिमल. नाउ दीज प्लांट्स, ये जैसे अब आप जितने भी प्लांट्स खा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप स्पिनच खाते हैं, पालक खाते हैं, अब अगर इस पालक के ऊपर एसिड रेन के इफेक्ट्स हैं, इसके लीव्स के अंदर एसिड रेन के इफेक्ट्स मौजूद हैं, तो इफ़ यू आर ईटिंग दोज वेजिटेशंस तो आपके बॉडी के अंदर डेफिनेटली एसिडिक लेवल्स, जो एसिड के जो लेवल्स हैं वो हाई हो जाएंगे, विच विल डैमेज योर किडनीज, योर ब्रेन, एंड यू कैन सफर फ्रॉम एल्जाइमर डिजीज एज वेल. नाउ द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम. अब जितनी भी हमने अभी तक चीजें देखी हैं उसमें से हमने क्या चीजें अखज की हैं, हमें क्या प्रॉब्लम समझ आ रही हैं कि विच आर ड्यू टू एसिड रेन. एक तो नंबर वन प्रॉब्लम ये है कि एसिड रेन कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस. लाइक किसी की गलती है और कोई और भुगत रहा है उसको. इट्स लाइक दैट. इट्स नॉट कि एक ही जगह पे कन्फाइंड नहीं है एसिड रेन, बल्कि अगर हमारी नेबरिंग कंट्रीज में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है तो उसका इम्पैक्ट हम पर डायरेक्टली पड़ रहा है. तो इस वजह से एक तो प्रॉब्लम ये है. नाउ ऑफ्टन इट डज नॉट फॉल वेयर द गैस इज प्रोड्यूस्ड. High chimneys disperse, spread the gases, and winds blow them great distances from they dissolve and fall to the earth as rain. Now, ये जैसे कि चिमनीज हैं, अगर चिमनीज में से ये एयर निकल रही है तो इट कैन ट्रेवल फार एरियाज, लाइक फार फार, बहुत दूर दूर तक ये जा सकते हैं, और फिर दूर जाके जब ये कंबाइन होके वाटर से और किसी भी लैंड पे जाके ये एसिड रेन जो है ये फॉल हो सकती है. Now, you can see, for example, gases produced in England and Western Europe can result in acid rain in Scotland and in Scandinavia. Like England और Western Europe में अगर गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं तो ये जाके एसिड रेन कर सकती हैं स्कॉटलैंड में और स्कैंडिनेविया में. अगर इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं और वेस्टर्न यूरोप में बहुत इंडस्ट्रीज हैं, और स्कॉटलैंड जिसको कहा जाता है कि बहुत ही खूबसूरत जगह है, बिल्कुल पोल्यूशन नहीं होता था एक ज़माने में स्कॉटलैंड में, लेकिन अब वहाँ पे भी
क्या है कि एसिड रेन के इफेक्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि एयर कैन टेक दीज नॉक्स एंड सॉक्स टू स्कॉटलैंड, एंड वहां पे जाके ये एसिड रेन करके वहां की भी वेजिटेशन को जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. Now, people probably couldn't live without electricity, therefore, coal will continue to be burned. Also, electricity and energy is continuing growing. Like आपको electricity के बगैर तो अब हम रह ही नहीं सकते, we cannot survive without it. तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, कोल की बर्निंग की वजह से आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी बनती है, और फिर डे बाय डे आपको पता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं. अब तो इलेक्ट्रिकल कार्स भी आ रही हैं. तो वन वे और अदर आप जनरेट कर ही रहे हैं किसी भी तरह से बर्निंग ऑफ कोल को. जितना ज्यादा बर्न होगा कोल, उतना ज्यादा नॉक्स एंड सॉक्स आपके एनवायरनमेंट में आएंगे, और उतना ज्यादा ही एसिड रेन जो है वो होगी. नाउ व्हाट आर द सॉल्यूशंस फॉर दिस. देखिए, अगर आपको मैं सिंपल वे में बताऊं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, और जितना भी एयर पोल्यूशन हमने अभी तक पढ़े हैं, पोल्यूटेंट्स जो भी, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, या एसिड रेन पोल्यूटेंट्स हो, 3 R's are very important in your lives, and that is reduce, reuse and recycle. देखिए, जो भी चीज है ना आपकी, जितनी भी, और इसी को कहते हैं कि सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल आपको होना चाहिए. सस्टेनेबिलिटी उसको कहते हैं कि जितनी आपकी जरूरत है ना आप उतना यूज कीजिए, और रेस्ट यू शुड लीव फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू adopt a sustainable lifestyle, which says that you should reduce the use of everything. Like if you are using 2 bulbs, you should come to 1 bulb. अगर आप अपने घर में 2 बल्ब जलाते हैं तो उसका यूज कम कर दीजिए, रिड्यूस कर दीजिए उसको 1 बल्ब में. तो आप इन अ सेंस आप इस साइकिल में आ रहे हैं जहां पे आप रिड्यूस कर रहे हैं कोल की बर्निंग. क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आपको कहाँ से मिल रही है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से तो मिल रही है, और दूसरा कोल की बर्निंग की वजह से मिलती है. तो आप अपनी जितनी भी यूजेज है उसको रिड्यूस करिए, कीजिए. सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप रिड्यूस करें हर चीज को अपने. देन रीयूज करने की कोशिश करें, यानी कि रीयूज करें. अगर आप पॉलीथीन यूज करते हैं, कोई शॉपर बैग ऐसा यूज कर रहे हैं, तो उसको रीयूज कर लीजिए. ये नहीं कि एक दफा यूज किया और उसको डस्टबिन में डाल दिया, क्योंकि पॉलीथीन आपको पता है कि एक तो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वो कभी भी खत्म नहीं होता है, एनवायरनमेंट के अंदर सस्टेन रहता है हमेशा. तो हमेशा आदत बनाइए कि रीयूज कीजिए ऐसी चीजों को जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं है. और बेस्ट तो यही है कि आप ऐसी जो प्लास्टिक बैग्स को बिल्कुल भी ना यूज करें, और दूसरे जो आपके कागज के हैं या कपड़े के जो बैग्स हैं उनको यूज कीजिए. तो रिड्यूस कर लिया आपने, रीयूज कर लिया, और फिर रिसाइकल करने की कोशिश कीजिए चीजों को. कि अगर एक चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पेप्सी पी एक एल्युमिनियम फॉइल में, तो अब आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि इस एल्युमिनियम फॉइल को आप ऐसे ही डिस्कार्ड ना कर दें, इसको रीयूज कर लीजिए, किसी और चीज के लिए इसको इस्तेमाल कीजिए. तो 3 R's are very important, and that is the solution for all kind of air pollutants. जितने भी pollutants हैं उन सब के लिए ये 3 R's are like they are the remedy. इसके बगैर आपकी लाइफ इज इम्पॉसिबल. जैसे जैसे डे बाय डे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, तो आपको मस्ट है कि आप 3 R's को की हैबिट को जो है वो अपने अंदर डेवलप कीजिए, और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की तरफ आइए. सस्टेनेबल का मतलब सिंपल वर्ड्स में यही समझिए कि जितनी आपकी जरूरत है उतना यूज कीजिए, और बाकी दूसरों के लिए कुछ छोड़ भी दीजिए, कुछ उनको भी यूज करने के लिए रहने दीजिए. तो बस उतना ही यूज कीजिए जितना आपकी रिक्वायरमेंट है. सो दैट इज द सॉल्यूशन फॉर ऑल काइंड ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, और इन पर्टिकुलर अगर एसिड रेन को देखें तो उसके लिए भी. अगर और इसके अलावा आप किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, लाइक सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड या नॉक्स कंपाउंड्स को कम किस तरह कर सकते हैं, कि आप व्हीकल्स कम यूज कीजिए, वॉक ज्यादा कीजिए, साइकिलिंग ज्यादा कीजिए, और इसी तरह की एक्टिविटीज, और खुद खुद आइडियाज जनरेट कीजिए कि मैं किस तरह से जो है वो एनर्जी के यूज को कम से कम कर सकूं, ताकि एनवायरनमेंट में मेरा कंट्रीब्यूशन कम हो सॉक्स और नॉक्स को पहुंचाने का. तो आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू यू. एंड इसके साथ मैं आपको रीडिंग मटेरियल जो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर रही हूँ. तो जस्ट गो थ्रू दैट ऑल्सो. और एक वीडियो मैं आपको इसके साथ और शेयर करना चाह रही हूँ. इफ़ यू जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो, इट्स लाइक 1.5 मिनट की वीडियो है.
So that will also support this lecture. What is acid rain? Acid rain is any form of precipitation with high levels of nitric and sulfuric acids. It can occur in the form of snow, fog, and even dry materials that settle to Earth. Most acid rain is caused by human activities. When people burn fossil fuels, sulfur dioxide and nitrogen oxides are released into the atmosphere. These gases react with water, oxygen, and other substances to form sulfuric and nitric acid. Winds may spread these acidic solutions over hundreds of miles. After it falls to Earth, acid rain enters water systems as runoff and sinks into the ground. This can make water toxic to crayfish, clams, fish, and other aquatic animals. The rest of the food chain, including non-aquatic species such as birds, is often affected as well. Acid rain also harms forests by damaging trees and leaves, robbing the soil of essential nutrients, and making it hard for trees to take up water. By designing cleaner power plants and using fewer fossil fuels, we can reduce the number of pollutants that create acid rain. So students, that's all for today. I hope you have learned so many things from today's topic, and I hope that you will implement like the remedies, what are the remedies we discussed today in your daily life also. Thank you very much for your kind attention, and see you soon, inshallah. Assalamu alaikum.